को जो रिसर्च किया वो आपने अपने शब्दों में, बातों में, अपने किताबों में लिखा। फिर मैं मंदिर बनाऊँ सर हमारी और सर आपकी बात का क्या सोच है काशी और हम लोगों को क्या काशी की ओर जाना चाहिए? हेलो, सबसे पहले तो मैं दूर से पीछे आने के बारे में बताऊं। पहले तो इसी के लिए बधाई देता हूं कि मैं आपके पास ही खींचा हुआ कैसे चला रहा है। ऐसे घाट वार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वार विश्वविद्यालय की परिकल्पना हुई और घाट वार पर टहलते हुए, पर चलते हुए अवबोध हुआ कि बनारस पदधारकों का नहीं, पगधारकों का शहर है। तो इस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं विषय कहते हैं कि आई वांट टू एक्सप्रेस माय डीप ग्रेटिट्यूड फॉर इनवाइटिंग अस फॉर दिस वेरी स्पेशल सेशन इन द ऑगस्ट गैदरिंग ऑफ दिस न्यूरोलॉजिस्ट। Definitely, it is a great honor for all of us, with immense pleasure and joy. You have created a space for us to speak a few words over Kashi and Baba Vishwanath. The way the whole RNA committee, under the leadership of Professor B. M. Mishra, has given the look of whole conference, whole gathering. This, as a faculty member of Kashi Hindu Vishwavidyalaya BHU, is very mesmerizing for me. And before this event, I have never seen such a mega event of any faculty of BHU before this. So I congratulate all the faculty members of BHU, especially my sincere friends under the leadership of Professor B. M. Mishra, who has worked tirelessly for the last 1 year. He told me in the last October that he is going to organize such a mega event in Banaras, and he came to my office to seek my blessing because he considers that I myself accepted his elder brother. He is my younger brother. And we together have a lot of experience regarding Kashi, its culture, its heritage. And here I saw, when I entered the premise, I saw the interconnectivity, interdisciplinary approach of this event. Here there is art gallery, there is literary events, there is musical performance. So many programs are going on in 8 halls of this premise. So, before I speak a few words over the book for Kashi and especially over Lord Shiva, this was my duty and responsibility to congratulate the faculty members of Department of Neurology, BHU, and we have privilege today to speak on the dais on the occasion. और बहुत सारी बातें यहाँ पर हो सकती हैं काशी को लेकर के, because there are a lot of dignitaries sitting in the audience from abroad. Some may understand our conversation, our communication, some may not. But if we keep on speaking over Shiva, the role of Shiva relating to Kashi, it will take a lot of time. So I will first start my speech and based over my speech will be based over the content of the book and its peripheral areas from where I realized I feel the importance of this book. बड़ा कठिन है न्यूरोलॉजिस्ट, इतने विद्वान न्यूरोलॉजिस्ट के बीच में अपनी बात करना, क्योंकि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं,
और डॉक्टर साहब से जुड़ करके मैं थोड़ा थोड़ा न्यूरोलॉजी को समझने लगा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर साहब मुझसे जुड़ करके थोड़ा थोड़ा साहित्य समझने लगे। तो एक तरह का समझिए कि देयर इज ए न्यूरोलॉजिकल एंड लिटरेरी कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स। तो आप उस रूप में इसको देख सकते हैं। और बहुत कुछ इनके साथ उठ करके बैठ करके मैंने बनारस के बारे में जाना, सीखा, देखा और इनकी जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, इनका जो नवाचारी व्यक्तित्व है, हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। मुझे ये हमेशा अच्छा लगता है कि he always talks and thinks about the alternatives. Nobody can grow in his or her life if he stops thinking alternatively, because thought of alternative makes you move ahead. Either be a neurologist or be a creative person or be an artist. You should keep on thinking in an alternative way. This is why this is the basic way to grow in the life, to move ahead. तो डॉक्टर साहब के साथ वो जो एक अल्टरनेटिव चीजें थी तो मुझे बहुत पसंद आती है। और डॉक्टर विंध्याचल यादव जो प्रोफेसर हमारे कलीग हैं बीएचयू में और हमारे छात्र भी रहे हैं, ये बहुत ही जानते हैं हमारे स्वभाव को। जहाँ भी वो चीज थोड़ी सी अच्छी लगती है मुझे बहुत पसंद आती है। काशी जब आया तो काशी में तो कोई बात ही नहीं थी। मुझे आज करने में, एक कन्फेस करने में कोई एजुकेशन नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि मैं जब छात्र था तो मैं चाहता था कि मुझे अगर नौकरी अकादमिक जगत में मिले और प्रोफेसरी मिले तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिले और बनारस में रहने का सुख मिले। और शायद जैसा कि मिश्र जी ने कहा, कुछ बार वगैरह ऐसे कहा होगा कि बनारस आ गया, और जब बनारस आया तो बनारस से जाने का मन कभी नहीं किया। जब अपॉर्चुनिटी तब भी थी और आज भी है। लेकिन ये मैं कहता हूँ मजाक में कि खूंटा बनारस में चढ़ेगा, रसने लंबी होती चली जाएगी। तो ये प्रोसेस रसने के लंबे होने का है, लेकिन खूंटा तो बनारस रहेगा। और बनारस को लेकर के देखिए बहुत सारी बातें हैं। बनारस और जो शिव, और दोनों एक तरह समझिए कि इंटरवीन है, मतलब दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं। बनारस को बगैर शिव के और शिव को बगैर बनारस के आप नहीं समझ सकते। और मैंने एक चीज महसूस किया कि यहाँ के जो मैं 4 दिन से मतलब आई एम कंटिन्यूअसली looking over the newspaper for the last 4 days, and it is flooded with the news of various program going on inside this device. और हमने उसमें से जो मैसेज देखा, मैंने देखा कि जो डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजी में डिसऑर्डर है, ये मैंने जितनी मेरी जानकारी नहीं कर सकता, आई एम द फाइनल ऑफ स्पीक ओवर द इश्यूज का आई नॉट स्पेशलिस्ट, लेकिन मैंने देखा चाहे वो गैस्ट्रो हो, चाहे आर्थो हो, चाहे स्किन की डिजीज हो, डिसऑर्डर सब इट इज साइन फॉर नन न्यूरोलॉजिस्ट। मैंने मेंटल डिसऑर्डर, मैं इस रूप में कहना चाहता हूँ कि मेंटल डिसऑर्डर की पोजिशनिंग होती है पूरी मेडिकल हिस्ट्री में। मेडिकल के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी विधाएं हैं, उसमें डिसऑर्डर चीजें, तो डिसऑर्डर की बात होती है, मेंटल डिसऑर्डर की, वो आप कहीं के न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू ही सोसाइटी में जाती है। एक्चुअली ये जो सेशन था अर्लियर, इट वॉज प्लान फॉर द टॉपिक एंड आई हैव गिवन दिस टॉपिक, दिस वाज लाइक इनोवेटिव सोशियोलॉजी ऑफ न्यूरोलॉजी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये थोड़ा अच्छा है तो बात करें, फिर बाद में बातें कहाँ होगी कि सोशियोलॉजी ऑफ न्यूरोलॉजी। तो जो न्यूरोलॉजी है उसमें मेंटल डिसऑर्डर को डॉक्टर ट्रीट करते हैं, उन पर एडवाइस देते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। और जो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि जो पायलर पर्सनालिटी थे इन द फील्ड ऑफ न्यूरोलॉजी, हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट, उनका नाम मार्टिन चालकॉट है, एज आई नो इट, ही वाज अ फ्रेंच डॉक्टर। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा, अगर आप डोंट माइंड, डोंट टेक इट लाउड टोन, मुझे लगता है कि लॉर्ड शिवा वाज द फर्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट ऑन दिस अर्थ। अब मे बी you may take it as a loud statement, but I think as a creative writer that Lord Shiva
is the first neurologist on this earth. Why? He always treat the social disorder. He always makes correction in the social disorder by reordering the whole process. So, जो disorder से reordering की process है, ये पूरे अर्थ पर, पूरी गैलेक्सी में जो हमारी माइथोलॉजी है उसमें लॉर्ड शिवा के अलावा किसी ने नहीं किया। और वह जो न्यूरोलॉजिस्ट है जो मेंटल डिसऑर्डर को रीऑर्डर करते हैं, वहाँ इन्फेक्शन नहीं होता। मैंने नहीं सुना कि मेंटल हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि मेंटल थोड़ा सा डिले हो गया है, जो कॉमन में जिसको सोशल या न्यूरोलॉजी तो थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया, तो जो करेक्टिव नेचर लेते हैं उस डिसऑर्डर को रीऑर्डरिंग ऑफ द डिसऑर्डर। इस रूप में मुझे लगता है कि शिवा का महत्व यहाँ पर है। इस बात पर है सेल्फ इनलाइटनिंग पोजिशनिंग लेते हैं, इल्यूमिनेटिंग प्रोसेस है। अगला उस पर एक श्लोक है कि काश्या में ही कास्ते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका सा काशी विद्यते तेन प्राप्या ही काशिका। अब कभी काश्या में ही कास्ते काशी, काशी स्वयं से प्रकाशित होती है। इट इज सेल्फ इनलाइटनिंग और इट इज इल्यूमिनेटिंग टू अदर बीइंग्स। यानी बनारस अपने आप में जो बनारस में काशी है, वह अपने आप में एक सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ आत्मज्ञान है, आत्मप्रबोधन है। और जो बनारस है में रह जाता है, बनारस के बाहर इसके संपर्क में आता है, तो इसके माध्यम से यह इल्यूमिनेटिंग प्रोसेस होता है, उसे भी ज्ञानी बनाती है काशी। तो काशी स्वयं प्रकाश का स्रोत है जो अपने परिसर में आने के लोगों को भी प्रकाशित करती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश और दुनिया से आए हुए जो न्यूरोलॉजिस्ट रहे हैं उनके भीतर ही एक काशी ने उनको इल्यूमिनेट किया होगा, उनको प्रकाशित किया होगा। किसी न किसी रूप में काशी ने अपनी इमेज उनके भीतर एक क्रिएट की होगी। तो इस रूप में अगर आप देखें तो यह पूरी संरचना, ये पूरी संरचना है शिव को लेकर के। शिव को जो बात करते हैं कि शिव की परिवर्तन है वो अर्धनारीश्वर रूप की। मेरे लिए शिव अर्धनारीश्वर के रूप में सबसे सम्मानित है, अर्थात आदि है पुरुष की, आदि है स्त्री। वहां पर जेंडर वाइज, जेंडर वाइज उनके भीतर दोनों ही जेंडर मौजूद है। और ये चीज हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट बाहर से आए हुए हैं उनकी जानकारी की जो बनारस में बैठे थे, यह चीज भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में बहुत पहले से मान रही है कि अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की गई है। यानी जो हमारा फीमेल है, वो जो मेल है, वो कोई सेपरेशन उसके भीतर नहीं है। जिस दिन पुरुष के भीतर से स्त्री का आधा हिस्सा निकल जाएगा, वो डेड हो जाएगा, वो कुछ नहीं। आश्चर्य हुआ कि जिस वर्षों से मैं पढ़ता रहा इस दर्शन को लेकर के, और उतना ही नहीं, एक छेविल बहुत बड़े चिंतक थे, दार्शनिक थे, उनका एक श्लोक आपके सामने रखना चाहता हूँ। जगत कृतय चित्त कर्म विधायन शिव शक्ति परिस्पंदो मात्रोपकरण। वो कहते हैं कि जगत कृतय चित्त है, कहते हैं कि पूरा जो संसार है शिव की लीला भूमि है, शिव की कला है। यहाँ पर हमारे मनीष खत्री और अनिल शर्मा जैसे बनारस के ख्यात आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, ये पूरे के, और ये पूरा परिसर है कला से ही सजा और संवारा हुआ है। तो कहते हैं कि पूरा का पूरा शिव की लीला भूमि इस रूप में नहीं किसी ने आकर के बनारस में निवास किया, बल्कि धरती शिव की कला भूमि हुई है। तो शिव जो कल्चर के, आर्ट के, लिटरेचर के, म्यूजिक के, ड्रामा के जो जनक है, पायनियर है इस रूप में माना जाए हमारे भारत में, तो वो जो शिव है, वो जो शिव है अपने भीतर ही शक्ति और पौरुष और स्त्री तत्व को समाहित किए हैं। इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी बात है, जो आपके जानने की बात है, जो एक इनोवेटिव है, वह है कि भृंगी और नंदी के बीच संवाद की शैली में लिखी गई बात है। ये जो भृंगी ऋषि और नंदी के बीच जो संवाद की प्रक्रिया का होती है, यह पुस्तक इस बात से बहुत मूल्यवान है। यह पुस्तक
हैं, घाटों पर घूमते हैं, बनारस की गलियों पर एक तरह का टहलते हैं, वहां पर चाय पीते हैं। जो अनुभव आए हैं यतीन्द्र मिश्र और यतीन्द्र चतुर्वेदी और विजयनाथ मिश्र के भीतर, उसका किसी से कंडेंस फॉर दैट एक्सपीरियंस। तो आप ये कह सकते हैं कि किताब से किताब नहीं लिखी गई है, किताब पढ़ करके यह किताब नहीं लिखी है। बिकॉज अगर आप देखें तो ऑलरेडी बुक्स आर अवेलेबल ओवर पासिंग एंड सिवा। आप उन किताब से किताब लिखेंगे कि देयर विल बी नो इन्वेस्टर और नोबडी इज गोइंग टू रीड, क्योंकि बहुत सारी किताबें हम लोग पढ़ें हिंदी में भी, अंग्रेजी में है, कोई मतलब नहीं। हिंदी की जो बातें हैं हिंदी है। अब एक हिंदी कीड़ा होता है, हिंदी कीड़ा भी होता है, उसका स्वभाव होता है। 5 मिनट 5 मिनट और नहीं जाते हैं। हिंदी एक कीड़ा होता है, हिंदी ऋषि भी है, उनकी मार्गदर्शी है और अगर चंदनी तो शिव के गुण रहेगी। तो जो हिंदी ऋषि है, हिंदी ऋषि से संवाद इस तरह में किताब लिखी गई है। इसके कारण से यह रोचक है और इंटरेस्टिंग से कहते हैं, इंटरेस्टिंग होता है। आप जो है इस किताब में प्रवेश करेंगे, इसके कंटेंट में जाएंगे तो आप किताब छोड़ नहीं पाएंगे। एक ही वन सिटी में आप इसको पढ़ते खत्म करना चाहेंगे, इसके बड़े रात आपके बीच है। अब उसमें आपको समझिए कि ये जो अंग्रेजी जिसे बीटर कहते हैं, जो हिंदी को नहीं समझते उसे बीटर कहते हैं। अब देखिए कि इसमें एक वो कवि का एक दोहा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदी कीड़े का नेचर है, स्वभाव होता है और यही सिंह का स्वभाव है, यही बनारस का स्वभाव है। उससे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। कवि का एक दोहा है, सुमिरन से मन लाइए जैसे कीट पतंग, कभी विसरे आप ही हो जाए ज्ञान। ये जो कीट पतंग ये पतंग की बातें करते हैं कि सुमिरन से मन लाइए, कहते हैं कि जब बनारस में आप भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं तो आप अपने सेल्फ को सोशल बनाने के, सेल्फ को डेडिकेट करेंगे। तो जितना ही बनारस में रहते हैं आप काशी को समझते हैं और शिव तत्व को समझते हैं, उतना ही आगे बढ़ करके अपने सेल्फ को सोशल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जिसे आप कहते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग योर सेल्फ टू द सोशल डाइवर्सिटी। ये जो सेल्फ का ट्रांसपोर्ट करना सोशल डाइवर्सिटी के लिए, सोशल कॉज के लिए, यह इस किताब की क्रक्स है, इस किताब की मूल भावना है। और यह कब हुआ है जब विजयनाथ मिश्र और यतीन्द्र चतुर्वेदी ने स्वाभाविक रूप से बनारस को जीते हुए अपने सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है। व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, इसलिए कह सकता हूं कि unless you go beyond your boundaries, you cannot create anything. विजयनाथ मिश्र एक ऐसे शख्सियत, ऐसे चिकित्सक हैं मेरे संपर्क में, जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज को लगातार तोड़ा है। आप इनको जब पैंडेमिक था और यहाँ पर जो शहर के और बाहर के जो चिकित्सक यहाँ आई है, उससे शेयर करना चाहता हूँ। मैं उस समय पैंडेमिक पोएट्री नाम की किताब लिख रहा था और वह इस रूप में सेमिनर बुक में लिखी। उसको मैं साझेदार करता हूँ कि पैंडेमिक और पोएट्री पर न केवल हिंदी में, किसी भी भारतीय भाषा में 2021 को कोई काम नहीं किया गया था, क्योंकि कोरोना का समय था। और मैं आज न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में था, तमाम सारे जिनसे हमारे संवाद होते थे, इससे मैं बार बार कहता था कि दुनिया में कुछ प्रयास ये है, क्या न्यूरोलॉजिस्ट पोएट्री और म्यूजिक के बहाने ट्रीटमेंट के उपाय सुझा सकते हैं क्या? यानी हीलिंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोएट्री एंड म्यूजिक। और डॉक्टर साहब को अच्छा लगता था। मैं इनको लियो रोशनफेल, जो दुनिया के बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने कोशिश किया था लियो रोशनफेल पोएट्री RX नाम की किताब है, तो बड़ी मशहूर किताब है। तो अपने पेशेंट का, वो रिवाज को साइकियाट्रिस्ट है, अपने पेशेंट को ट्रीट करते थे पोएट्री म्यूजिक के माध्यम से। डॉक्टर्स ने कहा और
फिर मैंने देखा कि क्या पोएट्री और म्यूजिक फिर कर सकते हैं, क्या उसको बहुत एडवांसमेंट हो गया है और बहुत सारे लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि कोरोना के समय हम लोग आइडियाज को दिया। ये जो सेल्फ को सोशल डाइवर्सिटी से जोड़ने की प्रक्रिया में किताब लिखी गई, यह किताब है जो हिंदी ऋषि से मंडी का संवाद शैली की विशेषता यह होती है कि कोई किताब जब आर्गुमेंटेटिव होती है तो बुनियादी तौर पर कम्युनिकेटिव होती है और वह इंटरेस्टिंग रोचक होती है। तो किताब यह आर्गुमेंटेटिव है, तार्किक भी है और संवादी भी है और रोचक भी है। इस बात से मैं दोनों लेखों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी विशेषता को मैं यहाँ बाकी बातें भी कभी करूँगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरह का बनारस और अपने शिव के प्रति आभार ज्ञापन है, ग्रेटिट्यूड है। और आप देखिए कि जब भगवान शिव कैलाश से भ्रमण करते हुए आए तो उनको और कुछ नहीं दिखा, बनारस दिखा, काशी दिखी। 3 शब्द है मैडम, आपके लिए मैडम 3 शब्द है बनारस के लिए, बनारस, काशी और वाराणसी। काशी एज वर्ड कल्चर नहीं, डीप कल्चर नहीं, तो मैं समझता हूँ बनारस है लिटरेरी हेरिटेज बनारस है। वाराणसी इज ए जियोग्राफिकल एटीट्यूड। तो बनारस, काशी और वाराणसी में जो 3 मैंने उसमें ज्योग्राफी है, कल्चर है और लिटरेचर है। अब कल्चर जो मैं कहा लिटरेचर का आर्ट भी है, म्यूजिक भी। तो आप सोचिए कि बनारस, काशी और वाराणसी ये तीनों एक ही तत्व से बने हुए हैं और वह शिव तत्व है जो मांगलिक तत्व है। और इन तीनों में आज तक कोई भी व्यक्ति इन तीनों में एक नाम को आज तक तमाम कोशिशों के बावजूद प्राप्त नहीं कर सका। तीनों नाम बनारस में चलते हैं, तीनों का उतना ही महत्व है, लेकिन तीनों का मेरे लिए एक अलग अलग मीनिंग है और मिल करके तीनों नाम वहां पहुंचते हैं। जब शिव कैलाश से चले, आखिरी बात करके मैं बात खत्म कर रहा था, तो चले तो आप देखिए कि शिव तैयारी कैसे करते हैं और बनारस तैयारी कैसे करते हैं। जब शिव वहां से चले तो तमाम लोग पहले आगे बनारस में बस गए, काशी में बस गए। उसमें एक अक्सर में किताब में 64 योगिनी का जिक्र है, तमाम कापालियों का जिक्र है, तमाम बड़ देवताओं का जिक्र है, तमाम गणेशों का जिक्र है। ये सारे के सारे शिव के स्वागत के लिए बनारस आने वाले यानी बनारस केवल शिव का अभिवादन ही नहीं करता, बल्कि जिसका अभिवादन करना होता है उसके लिए पूरी अच्छी खासी तैयारी कर लेता है। और आप देखिए विजयनाथ मिश्र जी के शो में आप सब खाद न्यूरोलॉजिस्ट का स्वागत करने का जिक्र आया अक्टूबर के 2025 में, तो 1 साल से काल होटल की नजाने के लिए परिक्रमा कर नजारे की रातें यानी पूरी तैयारी, हर डायमेंशन को देखना, किसको कहाँ बसना है, किसको, ये बनारसियों का स्वभाव है। और यानी जो ग्रेटिट्यूड है और ग्रेटिट्यूड विदाउट एटीट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड विदाउट एटीट्यूड ये बनारसी का स्वभाव है, ये बनारस का गौरव है। और हम बनारसी अपने सेल्फ को सोशल के लिए सरेंडर तो करते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के बहुत सफल करते हैं। इसलिए मैंने वास्ट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारे सामने जो झुकेगा भगवान शिव की तरह हम 100 बार झुकेंगे, लेकिन जो थोड़ा भी करेगा उससे फिर आकाश जाना, ऊंचाई पर विस्तार पाएंगे, इतने ऊंचे चले जाएंगे वो मुझे देखने में भी डरेगा। ये बनारसीपन है, यह इस किताब की खासी विशेषता है। आभार, आज आभार ज्ञापन करने का समय है। अगेन I express my deep and sincere gratitude for our such a mega event by Professor Lisa and his other colleagues. Thank you.